میں اپنی بیوی کو گھر میں ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میں اس کے لیے گجرے لے کر آیا تھا۔ مجھے میری ساس نے بتایا تھا کہ میری بیوی کو گجرے بے حد پسند ہیں۔ مجھے آج ہی اس کی پسند کا پتہ چلا تھا اور آج ہی میں اس کے لیے گجرے لے کر آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے سرپرائز دوں گا، مگر پورے گھر میں دیکھنے کے بعد بھی مجھے نہیں مل رہی تھی۔ امی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور چھوٹے بھائی کے کمرے میں میوزک چل رہا تھا۔ امی کو تنگ کرنا میں نے مناسب خیال نہیں کیا، اس لیے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھنے چلا گیا کہ شاید میری بیوی اسے بتا کر کہیں گئی ہوگی۔ میں جیسے اس کے کمرے کے قریب پہنچا تو چونک گیا۔ یہ آواز تو میں نے اپنا دل پکڑ لیا۔ میوزک کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز بھی آ رہی تھی جو بالکل جنسی تسکین کرتے ہوئے مرد عورت کی تھی۔ مجھے اپنے بھائی پر بہت غصہ آیا۔ وہ ایک مسلمان گھرانے میں رہتے ہوئے بھی ایسے کسی گناہ ارتکاب کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں کمرے کے قریب گیا تو وہاں سے آنے والی آہوں اور سسکیوں کی آواز میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں واضح طور پر ان آوازوں کو سن سکتا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے زمین اور آسمان ایک ہی گردش میں گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہتھوڑے کے ساتھ میرے دماغ پر ضربے لگا رہا ہو۔ میری بیوی میرے سوتیلے بھائی کے ساتھ تھی جو کچھ مجھے آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے اس قدر بڑا دکھ دے گی کہ اسے برداشت کر پانا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مر جانا کتنا آسان ہوتا ہے، اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ لوگ اگر خودکشی کیوں تو زندگی پر ترجیح کیوں دیتے ہیں۔ اذیت اور دکھ کی وہ کون سی شدت ہوتی ہے جس پر جا کر لوگ خود کو ختم کر لیتے ہیں؟ میرا بھی دل یہی کہہ رہا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں، مگر میری ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں اپنی ماں کی عمر بھر کی ریاضت کو بیکار کر جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے لیے سے ہی مجھے خود کو سنبھالنا تھا۔ میرے لیے برداشت کر پانا ناممکن تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ وہ سب کرے جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ میری غیرت پر بہت بڑا تازیانہ لگا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو جان لے لوں، مگر میں ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کس قدر چاہوں کے ساتھ ہم بیاہ کر اسے اپنے گھر میں لے کر آئے تھے۔ میرا یہی بھائی ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ میں اسے دیور بھابھی کی محبت قرار دیتے ہوئے خوش ہو جایا کرتا تھا، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کچھ غلطیوں کا خمیازہ ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ مجھے بھی اپنی بیوی سے محبت کی بہت بڑی سزا مل رہی تھی اور اسے میں بھگت رہا تھا۔ آج میں بہت خوش تھا۔ میری زندگی میں بہت ہی محنت کرنے کے بعد یہ دن آیا تھا۔ میری شادی ہو رہی تھی اور میری شادی بھی اس لڑکی کے ساتھ ہو رہی تھی جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ میری بچپن کی پہلی چاہت تھی جو اب تک میرے دل میں موجود تھی۔ میری شادی کی رسمیں انجام پا گئی۔ میں خوش تھا کہ ملن کی گھڑی بس اب قریب ہی ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر آگے جا کر کون سی قیامت بیتنے والی ہے۔ میرا دل بہت بے دردی سے ٹوٹنے والا تھا۔ میری ماں کے چہرے پر آج الگ ہی چمک تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، آخر کو اس کے بیٹے کی شادی تھی اور اس کے بیٹے کو اس کی محبت مل رہی تھی۔ میری ماں کا اس قدر زیادہ خوش ہونا تو بنتا تھا۔ وہ خوشی خوشی سب شادی کی تیاری میں مصروف تھی، اس بات سے انجان کہ جس خوشی کو وہ اتنے دل سے منا رہی ہے وہ تو بہت عارضی اور وقتی ہے۔ میری شادی انجام پا گئی اور جب میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو اس نے مجھے اپنے پاس آنے سے منع کر دیا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، مگر مجھے لگا کہ شاید وہ گھبرا رہی ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس نہیں آنے دے رہی، یا ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو جس کو بتاتے ہوئے وہ شرما رہی ہو، کیونکہ ابھی تو ہماری شادی کے ابتدائی دن تھے۔ میری کبھی بھی اس سے فون پر بات چیت نہیں ہوئی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ کیسی طبیعت کی ہے یا اسے میری طبیعت کے بارے میں کچھ پتہ چل پاتا۔ میں پہلے اس کی عادات اور مزاج کے بارے میں جان لوں، پھر اپنی عملی زندگی کا آغاز کروں گا۔ میں یہی سب باتیں سوچ کر دل کو تسلی دے رہا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج بھی اپنی بیوی کے قریب جانا چاہ رہا تھا، مگر وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی اور مجھے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ میں کب تک اپنے دل کو قابو رکھ پاتا؟ میں بھی ایک مرد تھا، میں بھی اپنے جذبات کی تسکین چاہتا تھا، اور اس کی تسکین کو حلال بنانے کے لیے میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور وہ تھی کہ میرے جذبات کو کسی بھی طرح سے تسکین نہیں دے رہی تھی، بلکہ میری تشنگی اور بھی زیادہ بڑھا رہی تھی۔ مجھے اس پر کسی بھی وقت غصہ آتا، مگر میں صبر کر جاتا۔ وہ مجھ سے
उम्र में भी छोटी थी, शायद यही वजह थी वो शर्मा रही थी। मैंने सोचा मैं प्यार मोहब्बत से पहले उसका इत्मीनान हासिल करूँगा और उसको अपनी मोहब्बत से इतना मजबूर कर दूँगा कि वो खुद ही मेरे पास आएगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि निकाह में बहुत ताकत होती है। निकाह से लोगों के जिस्म ही नहीं बल्कि रूहें भी बन जाती हैं। मैंने ये बात अपनी अम्मी को या घर में किसी और को नहीं बताई, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। आज मैं उसका पर्दा रखता तो कल को वो मेरे पर्दे रखेगी। अगर उसका ऐब मैं लोगों को मैं बयान कर देता तो ये तो उसे सबके सामने बेलिबास करने वाली बात होती। और एक दूसरे के ऐब रखना, यही तो अज़दवाजी ज़िंदगी का असल हुस्न होता है कि हालात चाहे कैसे भी हों, एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इस मोड़ पर मैं उसके साथ जबर करता या ज़बरदस्ती उसको हासिल करने की कोशिश करता तो सारी ज़िंदगी उसकी ये बातें याद रहती कि उसके दिल में मैं अपनी कदर, अपना मकाम खो देता। इसलिए मैंने यही सोचा था कि मैं प्यार से उसे अपनी तरफ माइल करूँगा। उसके साथ अमली ताल्लुकात बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैं अपनी हनीमून ट्रिप के लिए नादरन एरियाज़ के टिकट लाया और मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को ये बताऊँगा तो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता चला था कि वो घूमने फिरने की बहुत शौकीन है। ख़ासकर नादरन एरियाज़ उसकी फ़ेवरेट जगह है। जैसे मैंने टिकट अपनी बीवी के सामने की और उसको सरप्राइज़ दिया तो मुझे लगा वो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन उसका मूड ख़राब हो गया। वो ये सुन के एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैं उसकी इस हालत पर बुकला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश होने के बजाय क्यों रो रही है। लड़कियां तो इस दिन के लिए ख्वाब सजाती हैं। मैंने पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया और मैंने उससे पूछा कि क्या मसला है, तुम क्यों रो रही हो? मुझे तो लग रहा था तुम ये टिकट देखकर और हनीमून पर जाने का सुनकर बहुत खुश हो जाओगी। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं तहम्मुल मजाजी से काम ले रहा था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मुझे नहीं जाना है। ये सुनकर मेरे सारे जज्बात पर पानी फिर गया। मेरे अरमान ठंडे पड़ गए। कोई भी मर्द खुशी खुशी अपनी नई नेली दुल्हन को हनीमून पर ले जाना चाहता हो, अगर आगे से दुल्हन इस तरह कारी एक्शन दे तो उसका उदास होना तो बनता है। कुछ ऐसी ही हालत मेरी थी। मैं बहुत उदास हो गया था। मुझे उसके चेहरे से साफ महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ बहाना बना रही है, लेकिन मैं फिर भी अपने इस ख्याल का चटक गया। मैंने उससे न जाने की वजह पूछी तो उसने यही कहा कि मैं अपने वालिदैन के बगैर इतने दिन नहीं रह सकती। मैं कभी भी अपने वालिदैन से इतना दूर नहीं रही हूँ और मुझे अभी अपने वालिदैन की बहुत याद आती है। हालांकि जब से शादी हुई थी रोज़ वो बहाने से अपने वालिदैन के घर जाती थी और फिर मैं उसको लेने आता था तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी और मैं शर्मिंदा हो जाता था। मैं उसको इतना प्यार दे रहा था, इतनी मोहब्बत नछावर कर रहा था, लेकिन वो थी कि बेरुखी इख्तियार किए हुए थी। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो इतनी मोहब्बत पाकर खुशी से पागल हो जाती। मैं बहुत खूबरू पढ़ा लिखा और बरसर रोज़गार था। मेरे एक इशारे पे लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरती थी, लेकिन मैंने अपनी सारी मोहब्बत अपनी शरीक हयात के लिए बचा रखी थी, जो मेरी बचपन की मोहब्बत थी। एक इंसान जो सारी ज़िंदगी अपने शरीक हयात के लिए अपने जज्बे, अपनी मोहब्बत संभाल के रखे और जब उसकी शादी हो उसकी बीवी मोहब्बत के जवाब में उससे मोहब्बत न दे और उसे अपने करीब न आने दे तो उस इंसान पर क्या बीतती होगी। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वो बस जिद थी। मेरा मूड सख्त ख़राब हो चुका था। मैंने फ़ोन पर टिकट कैंसिल करवा दिए। ये तो शुक्र है कि मैं सबसे पहले अपनी बीवी को सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने घर में और किसी को नहीं बताया था कि मैं अपनी बीवी को हनीमून पर ले जा रहा हूँ। अगर मैं सबको बता देता और मेरी बीवी मेरे साथ चलने पर तैयार ना होती तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। इंसान को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए चुप रहना पड़ता है। मैं अपनी बीवी को इससे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता था। जब वो जारी पर राज़ी ही नहीं थी तो वो खुशी नहीं थी तो मैं उसे ले जाकर क्या करता। वहाँ भी वो इस तरह के मूड बनाकर रोती रहती। इससे अच्छा था कि मैं ट्रिप कैंसिल कर देता। मेरा दिल सख्त मायूस हो चुका था। 2 दिन तक मैंने भी खामोशी इख्तियार की। मैंने उससे कोई बात नहीं की। चुपचाप आके कमरे में सो जाता था या अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहता, मगर मेरे दिल में एक मदम सी आस थी कि वो मेरे पास आएगी और मुझे मनाएगी और मेरी नाराज़गी की वजह पूछेगी। लेकिन मेरा भरम भरम ही रहा। उसने ना मुझे मनाने की कोशिश की, ना मुझसे बात करने की कोशिश की। सच कहूँ तो मेरा दिल भी उससे उठता जा रहा था। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी और ख़ुद को समझाया कि लड़कियों के लिए अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो जज्बाती
फिर से गुजरते हैं, इसलिए मुझे ही इस रिश्ते को निभाना था और बचाना था, क्योंकि शादी ज़िंदगी में एक बार ही होती है। कुछ कंप्रोमाइज़ तो करने ही पड़ते हैं। मैंने अपने अना को पस पुश्त रख कर खुद ही इससे बात शुरू कर दी और आज मैं उसके लिए गजरे लाया था। मुझे लग रहा था शायद गजरे देखकर वो खुश हो जाए। मैं उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता था ताकि उसको एहसास हो, मेरी मोहब्बत की कदर हो और वो जल्दी से इस घर में रच बस जाए। मगर ये तो मेरी ये खाम ख्याली थी। मैं बहुत ज़्यादा गलत उम्मीद बांधे हुए था। अम्मी को आराम करते देखकर मैं अपने छोटे भाई के कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ से आने वाली आवाज़ों ने मुझे मतवज्जो किया और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लर्ज़ गई थी, क्योंकि मेरी वो बीवी जो मुझसे कतराई रहती थी, जिसके गरीज़ को मैं शर्म व हया समझता था, आज मेरे ही छोटे भाई के साथ ताल्लुकात बना रही थी। मैं आंखें मल मल के उन दोनों को देखता रहा और ख़ुद को यकीन दिला रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बचपन से मैं जिसको मोहब्बत के दिल में बसाए हुए था वो इस कदर धोखेबाज नहीं हो सकती। मैंने बहुत दुआएं और मनते मुरादे मांग मांग कर उसे पाया था, मगर शायद उसकी वफ़ा या मोहब्बत मेरी किस्मत में ही नहीं थी, या सारा कसूर ही मेरा था। मेरी दुआओं में कोई कमी रह गई थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और फूट फूट कर रो रहा था। किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर मैं भी अभी तक नाला था। जब से मेरी शादी हुई थी कोई एक ऐसा दिन नहीं था कि मैं भरपूर तरह से खुश हो पाया हूँ। हर रोज़ को ऐसी नई बात होती थी, ऐसा कुछ हो जाता था कि मेरा मूड ख़राब ही रहता था। मगर मैं खुद को तसल्ली और दिलासे दे दे कर अब थकने लगा था। इस शादी से मुझे क्या हासिल हुआ था? बेताबी, बेचैनी, बेआरामी, बेसुकूनी। बस एक बार मेरा दिल किया कि मैं इसके घर वालों को फ़ोन करके यहाँ बुलाऊं और सारी सूरत हाल बता दूं, मगर मैंने यहाँ भी खामोशी इख्तियार की और ये सब बातें सिर्फ अपनी माँ को बताने और उनसे रहनुमाई लेने का फ़ैसला किया। मैंने पूरा दिन और रात घर से बाहर बता दी थी। घर की तरफ जाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। सुबह जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मेरे हाल पर कोई तवज्जो न दी और ना ही उसे उस बात की फ़िक्र थी कि उसका शौहर पूरी रात घर से बाहर रहा है, जबकि मेरी माँ मेरी टूटी बिखरी हालत देखकर तड़प उठी थी। मेरी माँ को अंदाज़ा हो गया था मैं किसी किस्म के कर्ब से गुजर रहा हूँ या कोई अजियत है मुझे जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। उन्हें तड़प कर मुझसे मेरा हाल पूछा तो मैं उनके गले लग कर रो दिया। रोते रोते मैं एकदम उठा जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि किसी को पता न चल जाए कि मैं रो रहा हूँ। एक कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करने के बाद मैं अपनी माँ को एक एक बात सच बता दी थी और उनसे फ़ैसला करने के लिए कहा था। मेरी माँ मेरी तमाम बात सुनकर फटी फटी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना आ रहा हो, मगर मेरी टूटी बिखरी हालत मुझ पर बीतने वाली क़यामत की गवाही दे रही थी। मुझे अपनी बीवी से ज़्यादा अपने भाई पर गुस्सा था, जिसने अपने भाई की इज़्ज़त का ख्याल भी नहीं किया था। मैंने ये अपनी माँ के सामने की तो उन्होंने जो बात मुझे बताई इससे मेरे होश उड़ गए थे। मुझे ऐसा लगा था जैसे सातों आसमान टूटकर मेरे सर पर आ गिरे हैं। सदमे ने मेरी ज़बान को सख्त कर दिया था। मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा था। ये सब इंकशाफात के दिन थे। एक के बाद एक मिलने वाले सदमे ने मुझे डंडाल कर दिया था। मुझे समझ आ रहा था कि मेरे एक भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। जब हम दोनों का खून एक नहीं था, एक दूसरे से वफा कैसे निभा पाते। उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। वो मेरा सगा नहीं था बल्कि सौतेला भाई था और उसने मुझसे नफ़रत में ये सब किया था और मैंने उसके बाप का प्यार बांट लिया था, हालांकि उसने भी मुझसे मेरी माँ का प्यार बांटा था। उसे किसी तरह से मालूम पड़ गया था कि मैं इकरा को बचपन से ही पसंद करता हूँ और उससे शदीद मोहब्बत करने लगा हूँ, इसलिए उसने इकरा को फंसा लिया था। इकरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उसके माँ बाप ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। इकरा ने अपने माँ बाप के सामने वाज़ेह तौर पर मेरे भाई का नाम लिया था, मगर उन्होंने ये कहकर एक इकरा की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया कि वो कोई भी काम धंधा नहीं करता, मैं ही उसे खुश रख सकता हूँ, जिस पर इकरा ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली थी। मगर मेरे सौतेले भाई और इकरा के दिमाग में क्या चल रहा था, अगर ये कोई जान लेता तो वो दोनों को जान से मार देता। एक ने अपनी झूठी अना की तस्कीन की खातर, जबकि दूसरे ने अपनी हराम मोहब्बत को पाने की खातर कैसा घिनौना खेल खेला था। मैं हैरान हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ भी आएगा जब मुझे हैरत पर हैरत के शदीद झटके मिलेंगे। इकरा ने जब देखा कि उसके वालिदैन किसी सूरत भी उसकी शादी
अवैस के साथ करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन दोनों को यही बेहतर लगा कि मुझसे शादी करके वो दोनों अपना रिश्ता कायम रखते। एक ही घर में रहते हुए वो लोग आसानी से मिल सकते थे और किसी को उन दोनों पर शक भी नहीं होता। मगर अवैस बहुत चालाक था। इकरा को मालूम नहीं था कि वो उसे अपने जाल में फंसा रहा है, मेरी नफ़रत में सब कर रहा है। उसने इकरा को फटी पढ़ाई थी कि तुम अपने शौहर को अपने करीब मत आने देना। बहुत जल्दी हम दोनों हारिस को रास्ते से हटाकर खुदकुशी करेंगे और एक हो जाएंगे। इसलिए इकरा मुझसे दूर दूर रहती थी। ये बातें मेरे लिए शायद तकलीफ़ का बहस थी। जैसे मैं भाई समझता रहा, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। यूसुफ के भाइयों की तरह मुझे बेड़ियों के आगे ढाल दिया था। मुझे उन दोनों को इस गुनहोने खेल से नफ़रत हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फ़ैसला करूं। और मैंने अम्मी से मशवरा किया। अम्मी ने मुझसे कहा कि अब भी तुम इकरा के साथ रहना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, हरगज़ नहीं, मैं इकरा के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। उसने मेरी नक़दरी की, मेरे जज्बों की और मेरी मोहब्बत को ठुकराया और मुझसे बेवफाई की। मेरे निकाह में होते हुए किसी और के साथ अफेयर चलाया। ऐसी लड़की के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैंने अपने गुस्से को ज़िब्बत करके अम्मी को अपना फ़ैसला सुना दिया और अगले ही दिन मैंने इकरा को तलाक दे दिया था। मगर तलाक देने से पहले मैंने उसके घर वालों को सारी हकीकत बता दी थी और उनसे कहा था कि अगर आपकी बेटी अवैस को पसंद करती थी, इससे शादी करना चाहती थी, तो आप लोग उसकी शादी उससे करते। अगर उससे शादी नहीं की थी तो आपको मुझसे भी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह एक ही घर में रहते हुए ये तो सब ना होता था। आप लोग किस भ्रम में जी रहे थे कि मुझसे शादी करके इकरा और अवैस एक दूसरे से दूर नहीं मिलेंगे। अब ये जो कुछ हो रहा है इसमें सारा कसूर आप लोगों का है। मैं मज़ीद इकरा के साथ अब नहीं रह सकता और मैं उसको तलाक देता हूँ। मुझे इकरा के वालिदैन का बहुत दुख हो रहा था, मगर मैं ख़ुद को मज़ीद इस अज़ियत में नहीं रख सकता था। एक कर उस सर झुकाए शर्मिंदा से खड़ी थी। ज़ाहिर है उसका भयानक रूप, उसका सच सबके सामने आ गया था। और किसी को पसंद करना, किसी से मोहब्बत करना गलत बात नहीं है, मगर इस तरह से किसी को मोरे की तरह इस्तेमाल करना सरासर गलत है। किसी के निकाह में आकर उससे बेवफाई करना गलत है। इकरा के वालिदैन बहुत शर्मिंदा थे। वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और अपनी बेटी को डांट रहे थे, लानत मलामत कर रहे थे। मगर अब ये उनका मामला था। वो लोग चाहे तो जो भी फैसला करते, उनकी बेटी थी। मगर मैं जानता था इकरा जैसी लड़कियां कहीं भी टिक कर नहीं रह सकती। जब तक वो किसी से धोखा ना खाएं तब तक उनकी अक्ल ठिकाने नहीं आती। अब ये लोग फिर से ज़बरदस्ती इकरा की शादी किसी और से कर देते। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इकरा का सच सबसे छुपाते और इल्ज़ाम ससुराल वालों पर डाल देते, क्योंकि अक्सर बेटियों के माँ बाप अपनी बेटी का पर्दा रखने के लिए ऐसा ही करते हैं। मगर इकरा के दिल में तो अवैस बसा हुआ था। उन लोगों का मिलना जुलना, फ़ोन पे बात करना, सब वैसे ही चलता रहता और अवैस इकरा को इस तरह पागल बनाता रहता और इससे फ़ायदा उठाता। लेकिन मैं जानता हूँ अवैस इकरा से कभी भी शादी नहीं करेगा। अवैस मेरी और मेरी माँ की नफ़रत में इकरा से मोहब्बत का ढोंग रचा रहा था। मगर जब उन दोनों का सच मुझे पता चला गया और मैंने इकरा को तलाक दे दी, तो अब अवैस को भी इकरा से कोई सरोकार नहीं था। इकरा उसे मुसलसल फ़ोन करती रहती, मिलने के लिए बुलाती, लेकिन अवैस ने उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। अब उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नज़र नहीं आ रही थी। वो शुरू से ऐसा ढीठ था। बहरहाल मैंने उन दोनों को उनके चाल पर छोड़ दिया था। अगर मैं इस बारे में ज़्यादा सोचता था तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी। अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला था। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। मैंने उन दोनों की नफ़रत में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मुझे उनके सारे ख्वाब पूरे करने थे। मैंने अवैस से कहा कि अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। तुम पापा का ये घर बेच दो और उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब बेच दो और अपना हिस्सा रख लो, मुझे मेरा हिस्सा दो। अवैस तो शायद जाता ही यही था। फ़ौरन उससे बात के लिए राज़ी हो गया और हम दोनों ने बंटवारा कर लिया। मैंने अपने हिस्से से अपने लिए 2 कमरों का घर ले लिया, जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहता था। मेरी माँ ने अपनी भांजी का रिश्ता मुझसे तय कर दिया। वो लोग सारी हकीकत जानते थे और ये भी जानते थे कि उन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। उन लोगों की शुरू से ख्वाहिश थी कि मुझे अपना दामाद बना ले, मगर मैं ही इकरा की मोहब्बत में मरा जा रहा था। खैर, जहाँ इंसान का नसीब लिखा हुआ होता है वहीं होके हो रहता है। यमुना का नसीब भी शायद मेरे साथ लिखा था। इकरा तो आर्जी तौर पर बीच में आई थी और फिर चली गई। यमुना से शादी करके मुझे एहसास हुआ कि बीवी का सुख कैसे कहते हैं। यमुना मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसने मेरे घर को जन्नत बना दिया था, मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा था
اور سب سے بڑی بات وہ میرے لیے سکون کا باعث تھی، وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے انعام تھی۔ اویس آج بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ بٹوارے کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے تھے۔ اقرا نے بروقت عقل سے کام لیا اور اویس کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر اس نے اپنے والدین کی مرضی سے دوسری شادی کی اور اب اپنا گھر بسا رہی ہے، ورنہ اس طرح کی کئی لڑکیاں لڑکوں کو دھوکے میں آ کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں، یا تو پاگل ہو جاتی ہیں یا پھر خودکشی کر لیتی ہیں، پھر دھوکے سے ان کو کوٹھے کی زینت بنا دیا جاتا ہے۔ پہلے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ عورت جب تک گھر کی چار دیواری میں ہے تب تک محفوظ ہے، مگر میرا ماننا ہے کہ اب تو عورت گھر کی چار دیواری میں بھی محفوظ نہیں رہی۔ موبائل فون، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے یہ فتنہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ لڑکے لڑکیاں فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ پر ایک دوسرے سے رابطے رکھے ہوئے ہیں اور موقع ملتے ہی گھر سے باہر بھی ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں۔ میں کسی کو جج نہیں کر رہا، میں بس اپنا نظریہ بتا رہا ہوں۔ ایک تلخ تجربے سے گزرنے کے بعد میں نے یہی مشاہدہ کیا کہ میں اپنے رب کا بہت شکر گزار تھا جس نے بروقت مجھے اتنے بڑے دھوکے سے بچا لیا تھا، ورنہ اویس اور اقرا سے کچھ بعید نہیں تھا کہ میری جان بھی لے سکتے۔ بس اپنے نفس کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی کوتاہیاں غلطیاں معاف کر دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔